जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 23। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विणं चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। दुख रूप संसार से सदा के लिए विच्छेद हो जाना ही उसके संयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति में योगी के शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा चलना फिरना, देखना, सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हों, ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी से प्रारब्धानुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण उसका उन कर्मों से वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि न जाने यह काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्विण्णता अर्थात साधन से ऊब जाना है। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है, उसे अनिर्विण्ण चित्त कहते हैं। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य और उत्साह में कमी करने वाले भावों को साधक को अपने चित्त में उठने ही न देना चाहिए, बल्कि साधक को योग साधन में उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, सद्गुरु में और योग साधन के फल में पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा रखकर योग साधन को ही निश्चय पूर्वक अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य और ध्येय बनाकर दृढ़ता पूर्वक तत्परता के साथ उसके साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। Lord Krishna defines yoga as the severance from union with pain, that is, a state of disunion from every union with pain. This yoga should be practiced with determination and undespairing heart. The man who takes to the practice of yoga out of curiosity pursues it vehemently for some time and then abandons it once for all. He gains nothing. Steadfastness in yoga is essential. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 23. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായത് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പേരാണ് യോഗ എന്നും നമ്മൾ അറിയണം. ബോറടിക്കാതെ, അതായത് ക്ഷമയും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ആ യോഗ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ കടമ. ദുഃഖത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി വേർപിരിയുക എന്നാൽ അതിൻ്റെ സഹവാസത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകുക എന്നതാണ്. ആ അവസ്ഥയിൽ ഒരു യോഗിയുടെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നടക്കുക, ചലിക്കുക, കാണുക, കേൾക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ അവൻ്റെ വിധിപ്രകാരമാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അവൻ്റെ അറിവിൽ ഏക
ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അവന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സാധനയുടെ ഫലം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദൃശ്യമാകാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ചെറിയ രീതിയിൽ സാധന ചെയ്തു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ജോലി എപ്പോൾ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അഥവാ ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കുന്നതാണ്. ഈ വികാരങ്ങളെ നിർഭിന്നത എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത്തരം വികാരങ്ങളില്ലാതെ ക്ഷമയും ഉത്സാഹവുമുള്ള മനസ്സിനെ അനിർവഞ്ചിത എന്നും പറയുന്നു. യോഗാഭ്യാസത്തിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കുകയും ക്ഷമയും ഉത്സാഹവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികാരങ്ങൾ സാധകൻ തൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കരുത്. മറിച്ച് അന്വേഷകന് യോഗാഭ്യാസത്തിലും അത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സദ്ഗുരുവിലും യോഗാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസവും ആദരവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. യോഗയെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രധാന കടമയും ലക്ഷ്യവുമാക്കി നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും സന്നദ്ധതയോടും കൂടി തൻ്റെ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. जय गुरुदेव, जय परिशरण. अध्याय 6, श्लोक 23. या जगाच्या दुःखापासून मुक्त असलेले आणि त्याचे नाव योग आहे हे जाणून घेतले पाहिजे. कंटाळा न येता दृढनिश्चयाने म्हणजेच संयम आणि उत्साहाने भरलेल्या मनाने तो योग करणे हे कर्तव्य आहे. दुःखाच्या जगापासून कायमचे वेगळे राहणे म्हणजे त्याच्या सहवासापासून मुक्त होणे. या अवस्थेत योगींचे शरीर, इंद्रिय, मन चालणे, हालचाल करणे, पाहणे, ऐकणे किंवा ध्यान करणे आणि निर्णय घेणे त्याचे कार्य करतच नाही असे नाही. त्याचे शरीर, इंद्रिय, मन आणि बुद्धी त्याच्या प्रारब्धानुसार सर्व कृती करतात. परंतु त्याच्या ज्ञानात एकमेव ईश्वराशिवाय दुसरे काहीही नसल्यामुळे प्रत्यक्षात त्या कृतीचा त्याचा काहीही संबंध नसतो. कारण अभ्यासाचे परिणाम लगेच दिसून येत नाही. थोड्याशा अभ्यासानंतर मनात निर्माण होणारी भावना, मला आश्चर्य वाटते की हे कार्य कधी पूर्ण होईल, मी ते अजिबात करू शकेन का, त्याला निर्विण्णत असे म्हणतात. म्हणजेच अभ्यासाचा कंटाळा. अशा भावना नसलेले संयम आणि उत्साहाने भरलेले मन त्याला अनिर्विण्णचित म्हणतात. अभ्यासकाने योगाभ्यासात रस निर्माण करणाऱ्या आणि संयम आणि उत्साह कमी करणाऱ्या भावनांना त्याच्या मनात निर्माण होऊ देऊ नये. उलट अभ्यासकाला योगाभ्यासावर, तो सांगणाऱ्या शास्त्रांवर आणि सद्गुरूंवर आणि योगाभ्यासाच्या परिणामावर पूर्ण श्रद्धा आणि विश्वास असली पाहिजे. त्यांनी दृढतेने आणि परिश्रमपूर्वक त्यात गुंतले पाहिजे. योगाला त्याच्या जीवनाचे प्राथमिक कर्तव्य आणि ध्येय असे बनविले पाहिजे. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతా పరమసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 23. తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంయుతం స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతస. ఏది దుఃఖరూప సంసార సంయోగం లేనిదయ్యున్నదో, అలాగే దేని పేరు యోగమో దాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఆ యోగము విసుగు కలిగించినదై ఉండాలి. అనగా ధైర్యము మరియు ఉత్సాహంతో కూడిన చిత్తంతో నిశ్చయపూర్వకంగా ఆ యోగమును చేయుటయే కర్తవ్యము. దుఃఖం అనే ప్రపంచం నుండి శాశ్వతంగా విచ్ఛేదనం కావడమే దాంతో సంయోగం లేకపోవడం అంటే. ఆ స్థితిలో యోగి యొక్క శరీరము, ఇంద్రియములు, మనసు ద్వారా చెలించుట, తిరుగుట, చూచుట, వినుట, మననం చేయుట, నిశ్చయం చేసుకుంట మొదలగు కార్యములు నిర్వర్తించబడవేమో అనేది లేదు. అతని శరీరము, ఇంద్రియములు, మనసు, బుద్ధి అన్నిటి చేత ప్రారబ్ధానుసారము సమస్త కార్యములు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయితే అతని జ్ఞానములో ఒకే ఒక పరమాత్మ తప్ప
ఇతరమేది ఏది లేకపోవచ్చే అతనికి ఆయా కర్మలతో నిజానికి ఏ విధమైన సంబంధం ఉండదు. సాధన యొక్క ఫలితం కనిపించని కారణాన కొంత అభ్యాసం చేసిన పిమ్మట మనసులో ఈ పని ఎప్పటికి పూర్తవుతుందో ఎవరికి తెలుసు, నా వల్ల అవుతుందో లేదో అనేటువంటి భావాలు జనిస్తూ ఉంటాయి. దానినే నిర్విణ్ణత అంటారు, అనగా సాధించే విసుగు చెందుట. అటువంటి భావం లేకుండా ధైర్యము ఉత్సాహం కలిగిన చిత్తం ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని అనిర్విణ చిత్తం అని అంటారు. యోగ సాధన ఎందు అయిష్టతను కలిగించినవి మరియు ధైర్యము ఉత్సాహములను నీరుగార్చే భావాలను సాధకుడు తన చిత్తములో మొలకెత్తనీయరాదు. ఇందుకు భిన్నంగా సాధకుడు యోగ సాధన ఎందు దాని విధానమును తెలుపు శాస్త్రముల ఎందు సద్గురునందు యోగ సాధన ఫలితమందు పూర్ణ విశ్వాసమును శ్రద్ధను ఉంచి యోగ సాధననే నిశ్చయపూర్వకంగా తన జీవిత ముఖ్య కర్తవ్యము ధ్యేయముగా చేసుకుని దృఢముగా తత్పరతతో తన సాధనలో సంలగ్నం కావలసి ఉన్నది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. తం విద్యాద్ దుఃఖ సంయోగ వియోగం योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण चेतसा. जे दुख रूप संसार के संयोग से रहित अछि आ जेकर नाम योग अछि ओकरा बूझब चाही. ओ योग बिना उन्मुने ने बिना उक्ते ने माने धैर्य आ उत्साही चित्त सँ दृढ़ निश्चय संग केनाय कर्तव्य अछि. दुख रूप संसार सँ सदा लेल विच्छेद भ जेनाय ओकर संयोग सँ रहित भ जेनाय अछि. ओहि अवस्था में ई नहीं बूझ के चाही जे योगी के शरीर इंद्रिय आ मन सँ चलनाय फिरनाय देखनाय सुननाय व मनन आ निश्चय केनाय आदि काज होइते नहीं अछि. योगी के शरीर इंद्रिय मौन आ बुद्धि सँ प्रारब्धानुसार सब कर्म होइत रहैत अछि, मुदा हुनकर ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के छोड़ि कऽ आर किछ नहीं बचैत अछि. एहि कारणे ओहि कर्म सबसँ वस्तुतः हुनकर कोनो संबंध नहीं रहैत अछि. साधना के फल प्रत्यक्ष रूपे नहीं दिखाई पड़ला के कारण जे कनिके साधन कैला पर मन में एहन भाव उठैत अछि कि जाने ई काज कखन पूरा हैत, हमरा सँ हैत कि नहीं. एहि भाव के निर्विण्णता माने साधन सँ उबि जेनाइ कहल जाइत अछि. जे चित्त एहन भाव सँ रहित हुए आ जे धैर्य आ उत्साह सँ भरल हुए एहन चित्त अनिर्विण चित्त कहल जाइत अछि. योगी साधना में अरुचि उत्पन्न करऽ वाला आ धैर्य उत्साह में कमी आने वाला भाव सबके साधक के अपन चित्त में नहीं उठा देबा के चाही. साधक के योग साधना में ओकर विधान बताबऽ वाला शास्त्र सब में, सद्गुरु में आ योग साधना के फल में पूर्ण विश्वास आ श्रद्धा रखैत योग साधन के निश्चय पूर्वक अपन जीवन के मुख्य कर्तव्य आ ध्येय बना कऽ दृढ़ता आ तत्परता सँ साधना में संलग्न भ जेबाक चाही. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.